morning students. We are studying material control chapter, and today also we are continuing this chapter in this video. In our last video we learned how to calculate, how to control inventory through LIFO method, and today we are going to discuss two types of method to control inventory. First is your base stock method and second is your standard price method. Both of these methods are very simple, although the these two topics are not very important. They consist of 2 marks or maximum of 4 marks. So we will going to discuss today. First we will going to discuss base stock method. In this, base means आधार, in हिंदी आधार शेष पद्धति. आधार शेष पद्धति का मतलब ये होता है कि हम कुछ स्टॉक को, कुछ यूनिट्स को न्यूनतम स्टॉक मानकर रखते हैं और उनको उनमें से हम कभी भी इश्यू नहीं करते. ठीक है. बेस मीन्स यू हैव टू कीप सम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक एज अ मिनिमम स्टॉक एंड यू विल नॉट इश्यू दोज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. And your issuing method will any of LIFO or FIFO. That means you can use any method for issuing, whether LIFO or FIFO, but what you have to do, you have to just keep some units as a base. Base means आधार in your stock and you will not issue units from those base stock. Okay, यानी आपने जो बेस स्टॉक रख लिया है उसमें से आप निर्गमन नहीं करेंगे. चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं आधार शेष पद्धति का. इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मैं आपको इसी थ्योरी में से बताती हूँ. यहाँ से हम एक क्वेश्चन समझेंगे. एग्जाम्पल, एक संस्था ने 1 जनवरी 2013 को 500 इकाइयाँ 10 रुपये प्रति इकाई की दर से खरीदी. दैट मीन्स दिस इज़ योर परचेज ऑफ 500 यूनिट्स एट द रेट ₹10 पर यूनिट, जिसमें से 250 इकाइयों को बेस स्टॉक रखना है. That means out of these 500 units, only 250 units will be considered for issuing, and remaining 250 you will keep in your stock and always be in your stock, and you will not issue from those 250 units. 8 जनवरी को 2013 से 400 इकाइयों की 11 की दर से अगेन इट इज़ परचेज, और 18 जनवरी को 2013 की 600 इकाई अगेन इट इज़ परचेज. आपके पास ये परचेज हो रही है. 600 इकाइयाँ फिर 12.50 की दर से खरीदी. यदि निर्गमन 10 जनवरी, दैट मीन्स यू हैव ओनली वन इशू एट ऑन 10 जनवरी ऑफ 500 यूनिट्स. वो 25 जनवरी, अनदर इशू इज ऑन 25 जनवरी ऑफ 550 यूनिट्स. यू हैव टू मेंटेन लेजर. नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन. यू हैव थ्री टाइम्स परचेज एंड 2 टाइम्स इशू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक फॉर्मेट अकॉर्डिंगली. जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, keep some space for date. First column is of your date. Now the whole page you have to separate the remaining whole page into 3 main division, and heading of first will be receipt, issue and balance. Okay, this is your basic format. You पहले डेट का लिए कॉलम बना लीजिए. उसके बाद जो पूरा पेज बचा है आपका, उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए. पहला होगा आपका रिसिप्ट, दूसरा होगा इश्यू और तीसरा होगा आपका बैलेंस का. ठीक है, तो ये आपका मेजर फॉर्मेट है. नाउ गो टू क्वेश्चन. रीड एंट्रीज डेट वाइज एंड एंटर अकॉर्डिंगली इन योर फॉर्मेट. जैसे कि हमारे पास 1 जनवरी को, मैं बताती हूँ आपको, 1 जनवरी को हमारे पास 1 जनवरी 2013 को 500 इकाइयों को 10 रुपये प्रति इकाई की दर से हमने खरीदी. दैट मीन्स यू हैव परचेज्ड 500 यूनिट्स एट द रेट ₹10 पर यूनिट ऑन January 1, 2013. सो हियर इज़ योर फर्स्ट एंट्री. 1 जनवरी को आपने लिया and you are receiving, so you have to enter these amount in receipt side. Quantity is of 500 units. See, we have written quantity of 500 units. How much rate is? It is of 10 rupees per unit, and total amount is 5,000. We don't have any issues on 1st of January, so this side is to be kept blank, and on every date we have to maintain balance. So on 1st of January we have only 500 units of 10 rupees each at amount ₹5,000. Like this you have to continue for next dates also. So your next date is you have to keep 250 units this base as a base. Okay, now you don't have to mention these 250 units separately, but at the last you have to show these 250 units that you haven't issued from these units, and you have to show these units separated, that these are base stock. Okay, now on 8th January 2013 we are purchasing 400 units. This is January 8, 400 units we are purchasing at the rate ₹11. So total is 4,000. Sorry, it is
it should be 44,000, but I think it is printed mistake, and consider this as rupees 10. So this is 4,000 हो गई, and you don't have any issues on this date. So your balance on 8th of January is 500 units at the rate rupees 10 of 1st January, and newly purchased 400 units of rupees 11, it is 9,400. So total is 9,400. Okay, now on 18 January 2013 we are purchasing 600 units at the rate rupees 12.5. ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ फिर से क्वेश्चन. 600 units we are purchasing at the rate rupees 12.5 on 10th of January. This is 10th of January. Sorry, on 18th January we are purchasing. But उससे पहले 18 से पहले हमारी कौन सी डेट है यहाँ पे? 10th जनवरी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 18 तो बाद में आएगी, पहले आपकी 10th ऑफ जनवरी आएगी और हमें डेट वाइज चलना है. तो ऑन 10th ऑफ जनवरी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इशूइंग 500 यूनिट्स. सी ऑन 10 जनवरी वी डोंट हैव एनी रिसिप्ट, तो ये साइड आपकी खाली है, आप डैश 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 लगा दीजिए और आपको क्या करना है? इश्यू करना है. नाउ यू हैव टू इशू हाउ मच यूनिट्स? 500 यूनिट्स. अब 500 यूनिट्स आप किस में से इशू करेंगे? अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वी आर यूजिंग फीफो मेथड. ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फीफो या लिफो दोनों तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज वी आर अटेम्प्टिंग थ्रू फीफो मेथड. जो पहले आया है वो पहले जाएगा. उस हिसाब से हमें 250 यूनिट्स को इशू करना है. तो जब यूनिट्स हमें सबसे पहले रिसीव हुई हैं जनवरी 1 को, उसमें से हम इशू करेंगे. लेकिन बिकॉज दिस इज़ बेस स्टॉक मेथड एंड आउट ऑफ दिस 500 यूनिट्स वी have only 250 units available for issuing. Remaining 250 are your base stock from which we can't make any issues. So we took out 250 units from this 500 units because we had this unit only. So this is FIFO method. जो पहले आया वो पहले जाएगा. तो from this we take out 250 units here. We take out 250 units here and we multiplied it by its rate of 10 rupees. Now remaining issue is of 500 units. 250 units we took out from those units which we purchased on January 1, and remaining 250 we will take out from these 400 units which we purchased on January 8. जो बाद में आई है बची हुई जो यूनिट्स है 250 इकाइयाँ, वो जो बची हुई हैं जो जनवरी 8 में जो हमने सेकंड परचेज़ किया उसमें से हम निकालेंगे. ये 11 रुपये के हिसाब से थी. इस तरीके से ये 5250 अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा. अब कितना बचा आपके पास? ऊपर वाले 500 में से 250 गया, तो अब आपके पास 250 बचा 10 रुपये के हिसाब से. अब दिस 250 of 10 rupees will always be remain in your stock. You will never make any issues from these unit. यानी हमें 250 इकाइयाँ बेस स्टॉक रखनी है. तो उस 500 में से 250 तो हमने इशू कर दिए इस वाले 500 में से, और जो बचा 250 अभी हमेशा हमारे पास स्टॉक में चलते रहना चाहिए 10 रुपये के हिसाब से. और इस 400 में से हमने 250 निकाल दी, बची कितनी? 150. तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 4150. आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, बट what you have to do, you have to note down the question in your register by taking screenshot and try to solve on your own. ठीक है, तो ये आपने देखा. अब इस तरीके से 10 के बाद अब 25 जनवरी को इशू करें, लेकिन उससे पहले हमारे पास 18 जनवरी का भी एक परचेजेस है. तो ऑन 18 जनवरी वी आर परचेजिंग 600 यूनिट्स ऑफ 12.5 एट द रेट रुपीज़. नाउ after multiplying amount in quantity into rate we will get amount of 7500. now our total will be, देखिए 250 तो पहले का, ठीक है, 150 बाद में बचा और 600 हमारे पास और आ गया. मैं ये हटाती हूँ तब आपको दिखेगा. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ ऑफ डिफरेंट रेट. वन इज़ ऑफ 10, वन इज़ ऑफ 11 एंड वन इज़ ऑफ 12.5. so 250 is your base stock and it always be in your stock, and out of 400 unit which we purchased on January 8, we have issued 250 on January 10. now we have only 150 units is of rupees 11, and newly purchased 600 units of at the rate rupees 12.5. so total is I am showing you here, it is somewhere here. मैं ये ब्लॉक हटाती हूँ फिर आपको दिखेगा. it is 11,650 we have in our stock. now on January 25 we are issuing 550 units. अब हमें जनवरी 5 को 550 यूनिट्स इशू करने हैं. अब ये मेथड है फीफो मेथड, जो पहले आया है वो पहले जाएगा. सो सबसे पहले हमारे पास जनवरी 1 को आई थी, उसमें से 250 तो हमने इशू कर दी यहाँ पे. अब हमारे पास केवल 250 बची हैं जिसको हमें ऑलवेज बेस स्टॉक में हमारे पास रखना है. तो उसमें से तो हम इशू कर नहीं सकते, तो ये वाला तो हमारे पास कैंसिल हो गया. अब बचा 150 जो कि इन 400 इकाइयों में से जो हमने खरीदी थी जनवरी 8 को, इसमें से 250 हम इशू कर चुके हैं जनवरी 18 को. तो अब हमारे पास बची 150.
तो इन 150 को हम पहले यूज़ करेंगे और ये 11 रुपये के हिसाब से, तो ये 150 हमने यूज़ कर ली 11 रुपये के हिसाब से। लेकिन हमें कितनी इशू करनी, 550, अभी भी कितनी और इशू करनी, 400। तो ये इशू हम करेंगे इनमें से 12.5 के हिसाब से। तो 600 में से 400 हमने इशू कर दी 12,500 के हिसाब से, तो अमाउंट आया हमारा 6650। नाउ यहाँ बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड पे बिल्कुल लास्ट में आप लोग देखिएगा जो बैलेंस है किस तरीके से आएगा। देखिए 250 10 रुपीज़ के हिसाब से आया, क्योंकि बेस जो है आपका हमेशा 250 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से रहेगी, तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दी। 150 वाली इकाइयाँ जो हमने जनवरी 8 को खरीदी थी वो 2 बार हमने इशू कर दिया, एक तो 250 और अब एक 150, तो वो इकाइयाँ हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं, उनको नहीं लिखेंगे हम। अब कितनी बची, जो हमने जनवरी 18 को 600 इकाइयाँ खरीदी थी उसमें से 400 हमने और इशू करी, बची कितनी हमारे पास 200 12.5 के हिसाब से। तो वी हैव 250 यूनिट्स at the rate ₹10 and 200 units at the rate ₹12.5 and balance total is 5,000. So like this you have to calculate base stock method. This is simple LIFO and FIFO method, but what you have to do, you have to just maintain a base stock of whatever units it is mentioned in question, and you have to follow rest of the question as FIFO or LIFO. It is very simple, and we have discussed both type of methods in earlier videos, FIFO and LIFO method. Both methods we have discussed. In today or day after tomorrow I will give some assignments on these topics also. If you will solve, you will get more these topics in your mind. So this is your base stock method. Now we should move towards second method, standard price method. In this standard price method, material will be issued at predetermined price. That means वास्तव में जो ख़रीदा है माल हमने जितने रुपए में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक प्री डिटरमाइंड प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि 20 रुपये या 30 रुपये पे ही हमेशा इशू होगा। सो यू हैव टू ऑलवेज इशू मटेरियल एट दैट प्री डिटरमाइंड प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ परचेज। ठीक है, एक्चुअल परचेज प्राइस इज़ नॉट कंसिडर्ड। यू हैव टू ऑलवेज इशू मटीरियल्स एट वॉट एवर प्राइस predetermined in your question. So move towards the question. The details of purchase is an issue of material X for the month of January 2012 are as follows. आपको परचेजेज दे रखी जनवरी 3 और 8 की, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये देखिए इशू दे रखा है 600 का, यहाँ पे 800 का, फिर परचेजेज 17 को 25 को। अब नीचे क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ मटीरियल्स 20 फिक्स्ड फॉर द ईयर। ठीक है, प्रिपेयर स्टोर लेजर। अब आपको 20 रुपये यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं, ये देखिए ये 20 रुपये यहाँ पे फिक्स कर दिए। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना कि आपने मटेरियल 20 में ख़रीदा है कि 18 में ख़रीदा है कि 20 में कि 25 में। यू डोंट हैव टू कंसिडर द परचेज प्राइस, यू हैव टू ऑलवेज इशू मटेरियल एट ₹20 विच इज़ योर प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस में प्रमाप मूल्य पर निर्गमन करना। सो मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है फॉर्मेट। मैं आपको पहले कई बार मेंशन कर चुकी किस तरीके से, रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस, और ये आपकी डेट हो जाएगी। अब हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। सबसे पहले हम मूव करते हैं जनवरी 3 और 8 को हम लोग परचेज़ कर रहे हैं 800 इकाइयाँ, 700 इकाइयाँ, 20 और 18 के हिसाब से। सो राइट डाउन इन दिस वी आर रिसीविंग, तो 3 और 8 को वी आर रिसीविंग 800, 700 एट 20 एट 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 एंड 12,600। And you have to maintain balance also. So on 3rd of January you have 800 units at the rate ₹16,000. Now on 9th you have 800 plus 700 units, total of 1,500 units. And amount, how you will write amount, you will add their total amount 16,000 plus 12,600. okay, 2 dates complete हो गई। उसके बाद we are issuing 600 units of 9th of January. See here we are issuing here. So on 9th of January we are issuing, so write in your receipt issue side, this is 9th January. See, receipt side is blank, we are not receiving any quantities here, we are only issuing how much, 600 units. So you have written 600 here. And now what will be your issue price here? This method is a standard price method, and you have to always, you can see you are always issuing at ₹20. So you have to issue 600 units into 20 and your amount will be 12,000. Now how much will be remain in your balance side? You have 1,500 units earlier, yani on January, till January you have 1,500 units, out of which you issued 600 units. So 1,500 minus 600 is 900.
and your amount will be 28,600 में से how much you have issued 12,000, so 28,600 minus 12,000 and your remaining balance will be 16,600. okay, now move towards next date. January 11 we are issuing 800 units. ठीक है, तो जनवरी 11 में हम फिर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए जनवरी 11 हमने रिसिप्ट साइड खाली छोड़ दिया। वी आर इशूइंग 800 यूनिट्स। नाउ हम किस में से इशू करेंगे, ये जो 900 इकाइयाँ हमारे पास बची है उसमें से हम 800 इशू कर देंगे। अमाउंट क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज भी 20, तो 800 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000। अब हमारे पास पहले के कितने रखे थे 16,600, उसमें से 16,000 हमने इशू कर दिया तो बचे कितने यहाँ पे 600। 900 इकाइयों में से 800 इकाइयाँ हमने इशू कर दी तो बची कितनी यहाँ पे 100, तो 100 इकाइयाँ 600 रुपये के हिसाब से हमारे पास बची है। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, इट इज़ 17, जनवरी 17 परचेज़ किया है हमने 800 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से, और जनवरी 25 को परचेज़ किया है हमने 500 यूनिट्स 25 रुपये के हिसाब से। तो हम ये दो डेट्स को एक साथ ये परचेज़ हो रही हैं तो हम इनको मेंशन कर देंगे क्वेश्चन में। तो देखिए जनवरी 17 एंड जनवरी 29 वी आर परचेजिंग 800 एंड वी आर परचेजिंग 500 एट द रेट ₹20 एंड एट द रेट ₹25। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा। योर इश्यू साइड इज़ ब्लैंक बिकॉज वी डोंट हैव एनी इश्यूज ऑन बोथ ऑफ दीज डेट्स। नाउ वी आर मेंटेनिंग बैलेंस। बैलेंस कितना था, पहले का हमारे पास केवल 100 रुपये रखा था। ठीक है, अब ये मैं आपको पॉइंट आउट करूँगी तो आप लोग ठीक से देख नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ पे मैं यहाँ पे कहीं की बात करूँगी तो आप देखिएगा। हमारे पास पहले 100 रखे थे, अब हमारे पास 800 और आ गए, तो जनवरी 17 को तो हमारे पास 900 हो गए। यहाँ पे 900 अमाउंट हो जाएगा टोटल 600 प्लस 16,000, तो 16,600 हो जाएगा। मैं ये ब्लॉक हटा रही हूँ तो आपको दिख सके 16,600। उसी तरीके से जनवरी 25 को हम 500 रिसीव कर रहे हैं, तो 500 900 तो पहले थे, जनवरी 17 तक हमारे पास 900 हो गए थे। नाउ just add 500 in this, so 900 plus 500 it is 14,000 units we have, and how much amount 16,600 plus newly purchased 12,500, so total will be 29,100. so you have this balance on January 25th. Move towards next date. On January 31 we are issuing 1,000 units. On January 31 issue 1,000 units. सी हियर आपने इशू करा 1,000 यूनिट्स। किस पे इशू करेंगे, 20 पे, क्योंकि 20 ही आपका प्रमाण मूल्य है हमेशा। देखिए आप यहाँ पे मैं ये लिखा हुआ भी है फॉर्मेट के ऊपर, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर इश्यू, दैट मीन्स यू हैव टू ऑलवेज इश्यू मेड इश्यूज ऑन एट द रेट ₹20 per unit. So this time on 31st January we are issuing 1,000 units at the rate ₹20 and total is 20,000 rupees. So how much units now remain in your balance, you have 1,400 units till 25 January, and after make issue of 1,000 units on January 31 we have only 14,000 minus 1,000, we have only 400 units in your stock as balance on 31st January, and amount is 29,100 less 20,000 which we made issue on 31st, so we have only balance of 9,100. So like this you have to calculate, you have to attempt question of standard price method. We don't have any technical things here to calculate. What you have to do, you have to just made issues at standard price which is given in your question. You don't have even to calculate at what price your material will going to issue. Okay, so this is today we learned two methods, standard price method and base stock method. Both are very simple, and also these type of questions are not very important for your question. Some theory type questions will be asked on these topics, what is base stock method and what is standard price method, like this type of question. और बट वॉट एवर हाउएवर, मान लीजिए कभी एग्जाम में आपके आ भी जाता है, सो दीज आर नॉट वेरी टफ क्वेश्चंस कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। सिंपल है क्वेश्चन, देखिए प्रैक्टिस करिए खुद से और समझिए।